Welcome to DSC's Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Dear students, welcome to my class. Today I am going to discuss with you a very important topic, that is adjective and its types for class 9th. As you know, each and everything in English language is very important to learn the basic things, that's how language works. But today the topic that we are going to discuss is very important, not only from examination point of view but also from others points. So let us begin the topic and see what's the difference between adjective and other parts of speech, and why adjective has so much importance in this language. So we discuss particularly about adjective and its kinds in reference to your textbook. But before discussing with your textbook, you need to understand one thing, that note down all the material in your notebooks. So let us see this paragraph. This particular paragraph is taken from your ninth class book, a lesson Moti Gach Mountaineer. So in these lessons you will see that the words which I have underlined, they are all adjectives. Coffee planter, forest land, and very worst, foolish, tent peg. So these are all adjectives. So, and also we will, at the end of the exercise, we will solve these note positive, comparative and superlative degree of adjectives, which is also there in your textbook. Form degrees of comparison of the following adjectives. We will perform all these exercise. Let's begin the topic with the term definition. The word which is used to qualifies a noun or a pronoun is called adjective. ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए, उसे ही हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ उदाहरण को, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ही इज़ अ बॉय। तो जैसे आप सेंटेंस को देख रहे हो, ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। लेकिन अगर इसमें हम गुड को डाल दें तो उसकी क्वालिटी पता चल जाती है कि ही इज़ अ गुड बॉय। बैड बॉय भी हो सकता है, तो ये गुड वर्ड जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें अगर हम बोलते हैं शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट वर्ड एडजेक्टिव है। देन तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, दिस इज़ अ ब्लैक पेन, तो इसमें वर्ड ब्लैक है। और दैट इज़ अ बिग हाउस, इसमें वर्ड बिग जो है वो एडजेक्टिव है। आई हैव अ स्मॉल गार्डन, तो इसमें स्मॉल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स है। तो ये सेंटेंस जो है इन एडजेक्टिव्स के बिना भी कंप्लीट है, लेकिन अगर हम इनको लगाते हैं तो हम उस चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं। आई हैव अ स्मॉल गार्डन, कि मेरे पास गार्डन कैसा है, छोटा गार्डन है। Dear students, now we will discuss the kinds of adjective. So let us see what are the different kinds of adjective. So number one, adjective of quantity, then adjective of quality, adjective of number, interrogative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, exclamatory adjective, and emphatic adjectives. So as far as different types of concern, so we have 8 main types of adjectives. Now we will discuss one by one each of them. प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। द वर्ड दैट शोज, ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं क्वांटिटी ऑफ एन एनीथिंग, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में, इस कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसलिए हम उनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बात करते हैं हम ऑल, होल, मच, सम, इनफ, एनी, इनसफिशिएंट और सफिशिएंट। अगर हम बात करें आल की, तो आल में हम नंबर नहीं बता सकते, बट क्वांटिटी बता सकते हैं। नंबर नहीं बता सकते हम कितने बंदे, 5, 6, 7, हम ऑल द स्टूडेंट्स, इट मीन्स कंप्लीट। तो ये जो एडजेक्टिव है इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो कुछ एग्जांपल इस पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर, आई हैव डैश मनी टू स्पेंड, शी हैज़ पेशेंस टू bear the loss, I have done
हार्ड वर्क। डैश बॉयज वर एब्सेंट येस्टरडे। अगर पहले एग्जाम्पल को बात करें, आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, तो लिटिल वर्ड बता रहा है बहुत कम, बट वी आर नॉट एबल टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इज द अमाउंट। शी हैज़ मच पेशेंस, तो ये अगेन वैसा बता रहा है, हमें क्वांटिटी को डील कर रहा है। इनफ हार्ड वर्क, वी डोंट नो हाउ मच। और ऑल द बॉयज, वी डोंट नो द नंबर, वी ओनली नो क्वांटिटी। तो ये जो एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव को लिटिल, मच, इनफ और ऑल, ये सारे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे बात करेंगे। द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए noun or a pronoun is called adjective of quality। तो देखो बेटा, ये जो है adjective of quality, ये नाम ही बता रहा है कि ये noun की क्वालिटी बताएगा, या फिर pronoun की क्वालिटी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर गुड, ब्लैक, केयरलेस, ब्रेव, मडी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको फर्दर क्लियर करते हैं कुछ और एग्जाम्पलों से। जैसे कि ही इज़ ए डैश बॉय, माई ग्रैंड फादर हैज़ ए डैश डॉग, राम इज़ डैश अ बॉय ऑफ आवर क्लास, अकबर इज़ डैश किंग। अब हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, ही इज़ अ बॉय, तो जस्ट वो एक लड़का है, तो गुड लगाने से हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो लड़का अच्छा है, या हम बैड भी लगा सकते हैं। इसी तरह से माई ग्रैंड फादर हैज़ ए ब्लैक डॉग, तो डॉग जो है वो नाउन है, और ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि डॉग कैसा है, ब्लैक। इसी तरह से राम इज़ ए केयरलेस बॉय, तो बॉय लड़का है, नाउन है, और इसकी क्वालिटी बता रहा है केयरलेस वर्ड। तो अकबर इज़ ए वाइस किंग, यहाँ अकबर इज़ ए किंग इटसेल्फ कंप्लीट सेंटेंस, बट वाइस यहाँ लगने से इसकी क्वालिटी पता चल रही है कि अकबर एक वाइस किंग थे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ adjective, that is adjective of number. The word which shows amount or number is called as adjective of number। कि ऐसा शब्द जो हमें अमाउंट के बारे में बताएगा और नंबर के बारे में बताएगा किसी चीज़ की, तो वो होगा हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी कि इसमें हमें नंबर एग्जैक्टली पता होगा, जैसे कि क्वांटिटी में हमें पता नहीं था। तो इसकी तीन टाइप्स हैं फर्दर, डेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्वांटिटी और नंबर में क्या डिफरेंस है। तो नंबर में हमें नंबर एग्जैक्टली पता चलता है। तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ डेफिनेट एडजेक्टिव, जो आगे फिर फर्दर डिवाइडेड है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अगर हम सीधा वर्ड लिखते हैं जैसे 1 2 3, आई हैव अ 2 पेन, आई हैव अ 3 पेन, आई हैव अ 1 पेन, तो वो कार्डिनल है। तो अगर ऑर्डिनल है जैसे द फर्स्ट बॉय ऑफ द सेकंड रो, तो सेकंड थर्ड, ये वर्ड जो है ऑर्डिनल है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सेवरल, एनी, सर्टेन, फ्यू, सम, ऑल। तो जैसे कि हमने बात की थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कि वहाँ हमें क्लियर नहीं होता नंबर, वैसे ही ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर की ही एग्जांपल है, बट यहाँ पे हमें इनडेफिनेट लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अनदर टाइप ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर की ही एक टाइप है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर वर्ड्स के साथ, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल डैश गर्ल कैन डू इट, तो ईच गर्ल कैन डू इट, तो यहाँ पे ईच वर्ड जो है ये बता रहा है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम हिंदी में वितरण वाचक भी बोलते हैं। एवरी वन वांट्स टू प्ले, तो यहाँ एवरी वर्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नीदर ऑफ दीज प्ले, तो नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और प्यारे बच्चों इसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। तो चलो देखते हैं। द वर्ड विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन यही वर्ड हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन आपको ये जानना इसमें ज़रूरी है कि जब हम इनको लगाएंगे एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को, तो हमें आगे जो वर्ड आता है वो नाउन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज़ लास्ट, तो यहाँ वर्ड हुज और आगे देखें आप बुक लगा हुआ है। बुक वर्ड जो है ना,
ये आपका नाउन वर्ड है। तो ये हमें बताता है, इसलिए हुज और बुक, हमने अगर नोन की एडजेक्टिव डेफिनेशन पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो नोन को क्वालिफाई करे वही एडजेक्टिव है। तो आप देखेंगे बुक, कार और पर्स तीनों नाउन है, और इसमें हुज, विच और हुज इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो हुज बुक इज लास्ट, विच कार डू यू लाइक, हुज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। बच्चों अब हम इस नोट की तरफ ध्यान देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो WH प्लस नोन या नोन फ्रेज लगा हो तो वो इंडेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे कि विच पेन इज़ योर्स, या हम विच और पेन जो है वो नाउन है इसके आगे, इसलिए इंडेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल में देखें अगर आप, तो विच इज़ द कैपिटल ऑफ जापान, तो यहाँ विच के आगे इस लगा हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब सेकंड वाले में जो विच है वो इंडेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये क्लियरली डिफरेंस क्लियर हो जाता है। तो विद दिस आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बेटा इसका नाम ही बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। ये किसी की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसमें वर्ड, द वर्ड विच पॉइंट्स आउट एंड, ये नोन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करेंगे। तो बात यहाँ हमेशा नोन या प्रोनाउन की रहेगी, क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नोन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर दिस, दीज, दो, सच, योर एटसेट्रा। कुछ एक उदाहरण है हमारे पास। नंबर 1, बुक्स आर वेरी यूजफुल, डैश आई लाइक फ्लावर्स, डैश स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो पहली एग्जांपल की बात करें तो दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, तो हम की किताबों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वाली किताबें। दूसरी एग्जांपल, आई लाइक सच फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स, सच ऐसे, हम अगेन इशारा कर रहे हैं। और दो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा करके कि दो स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। प्यारे बच्चों अब हम इसकी 6th टाइप को डिस्कस करेंगे, 6th काइंड को, जो कि है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो ये इसका नाम अगेन हमें बता रहा है पोजेसिव। तो द वर्ड विच शोज पोजेशन, ऐसे वर्ड जो पोजेशन के को दिखाएंगे वही वर्ड हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हिज, हर, योर्स, माई, ईट्स, देयर। ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। तो फॉर एग्जांपल पहली उदाहरण को लेते हैं, डैश कार हैज़ बीन स्टोलन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं योर कार हैज़ बीन स्टोलन। तो कार अगेन नाउन है और योर वर्ड यहाँ पे पोजेसिव है। इस तरह से माई और हर। Friends, now we will talk about the second last type of adjective, that is exclamatory adjective. The word which shows surprise is called an exclamatory adjective, and this word is derived from the word exclamatory sentences. For example, dash a mistake, dash a man he is. To what a mistake, what a man he is. So you can see in both example there is mistake and man, again a noun, and the word what and qualify it. So now we'll talk about the लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज़ एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो हिंदी में इसे हम बल पूर्वक भी कहा जाता है। द वर्ड विच emphasize the idea, statement etc. is called an emphatic adjective. For example, it was your idea, that is the place where I met. Both sentences are complete, but when we put the word on and very, so they will definitely put more emphasis on it. So for example, it was your idea, that is very place. तो दो both word on and very are। तो प्यारे बच्चों अब हमने इसकी काइंड्स देख ली। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पे। तो सबसे पहले हम ये 3 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राम इज़ ए डैश बॉय, राम इज़ देन श्याम, राम इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। तो पहली एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं कि राम इज़ ए क्लेवर बॉय। तो हमने एक वर्ड लगाया है क्लेवर फर्स्ट एग्जांपल में। तो अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो राम इज़ ए क्लेवरर देन श्याम, और देन हम थर्ड की बात करें तो राम इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये अलग अलग हैं, तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट हैं। अगर पहले की बात करें क्लेवर की तो सिंपल एग्जाम्पल है कि राम की एक स्किल है कि राम एक बहुत चालाक लड़का है। और सेकंड में अगर बात करें राम इज़ क्लेवरर देन श्याम, इट मीन उसकी स्किल श्याम से ज़्यादा है। और थर्ड एग्जाम्पल में राम इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, इट मीन्स कि उसकी जो स्किल है वो सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा है। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है जिससे कि हमें पता चलता है किसी चीज़ के बारे में। तो जब हम बात करते हैं पहली की तो फर्स्ट जो है हमारी कि राम इज़ ए क्लेवर बॉय,
तो वो सिंपल है। और सेकंड में जब हम बात करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड में हमने दो बंदों के बीच में कंपैरिजन किया क्लेवर लगाकर। और थर्ड जो है वो है हमारी क्लेवरेस्ट, जिसमें हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं कि जैसे हमने कहा कि राम जो है वो क्लेवरेस्ट बॉय है, तो इट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा चालाक है। इट मीन्स more than two things are compared together. So students, with the discussion of three examples, we will able to know that there are degrees of adjectives. And how many degrees of adjectives? There are 3 degrees of adjective. The number 1, positive degree. The number 2, comparative degree. And the number 3 is superlative degree. And these 3 degrees of adjectives can be used in a different way. As we have discussed positive degree, when we talk about the positive degree, so it is used only for a single object or single thing. And when we talk about comparative degree, the comparative degree is used between two things. And when we talk about the superlative degree is such kind of degree which is used between more than two types of things. So now first we will discuss what is positive degree. पहले हम बात करेंगे कि positive degree क्या है. The simple form of adjective which is used when no comparison is intended is called positive degree of adjective. The simple form, for example, small, big, long, great. So these are the simple kinds of degree of adjectives. So there is no comparison is made. As we had discussed in the first example, Ram is a clever boy. But as far as the second comparative degree of adjective is concerned, that is totally different from this positive degree of adjective. The second degree of adjective, comparative degree, the comparative degree shows a higher quality than the positive. It is used between two objects are compared. तो जैसे कि हमने बात की जो comparative degree है ये एक हायर क्वालिटी की है जन के पॉजिटिव की. तो यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर, जैसे हमने पीछे से सेकंड एग्जांपल में देखा था कि राम जो है वो क्लेवर है देन श्याम. अब बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की. तो सुपरलेटिव डिग्री जो है ये इन दोनों से डिफरेंट है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी. इसमें हाईएस्ट क्वालिटी की बात होती है. इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर. जब दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट. तो हमने थर्ड एग्जांपल में देखा था कि राम जो है इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. तो वो सभी बच्चों में क्लास में सबसे ज़्यादा चालाक है. दैट इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. तो ये थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इनसे पहले हमेशा दा भी लगाया जाता है. ये भी आप नोट रखें. So dear students, now we have completed the whole topic of adjective along with its kinds and degree of adjectives. So as far as your home task is concerned, so I would like to ask you and request you to note down at least 50 degree of adjective so that you can make the comparison and learn all and try to find out examples from your day-to-day life so that you can understand it well. Whenever you read any text, you need to find out these kind of things so that you can understand